Hi, good afternoon. Today I have a very important and I'm honored to be in the presence of such a eminent personality, Dr. Vasant Khadatkar. He is the current president of Indian Academy of Pediatrics and he has also won the highest IMA award, which is as close to the BC Roy Award as possible. Dr. Vasant Khadatkar, I welcome you to the podcast, sir. Thank Namaskar. you. How are you, sir? Fine. Um, Thank you for taking out your time, sir. But let's start with early life. Why pediatrics and how did Colors Hospital start? Yeah. Actually, it's a really it can become a story because I born in a village place like Tusa. It's near Amravati, which was really it was a village. It was not Tahsil also. So that place like is a community. Is a where neighbor are all near about 25 families were like our one family, and I was there with so many children, so many mama, maushi, kaka, kaku. There I developed some affinity towards children. I was playing with good children, small kids, and that might be the mindset of me कि मेरे को बच्चों का डॉक्टर बनना है. Second is that I saw in that village, which became later on Tahsil place, कि बच्चे की डेथ्स होती थी बहुत ज़्यादा सारे से कॉमन प्रॉब्लम डायरिया निमोनिया. आज मेरे को समझता है कि डायरिया से डेथ कैसी होती है कि मैंने बिकम पीडियाट्रिशियन डिहाइड्रेशन से डेथ होती थी बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ पीडियाट्रिशियन. और वो एक बहुत बड़ा स्टिमुलस मेरे लिए कि था कि पीडियाट्रिशियन बनना चाहिए. और सेकंड थोड़ा बड़ा होते गया तो मेरे को जब 12th में आया तब मेरे को ये समझ में आया कि पीडियाट्रिक इज़ रियली चैलेंजिंग ब्रांच. बच्चा क्यों रोता है, why he is crying, what happened to him, nobody knows, he can't tell, you have to understand. And I always believe in accepting challenges. So मुझे ऐसी चैलेंजिंग ब्रांच लगी कि आपने को अगर कुछ देना है, इट्स नॉट ओनली आई एम गिविंग टू पेशेंट. अदर ब्रांचेस में क्या पेशेंट को देना होता है, पर यहाँ पे तुम मम्मी पापा फैमिली ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सबको देते हैं, सबको यू गिव द सेटिस्फैक्शन. एंड वंस योर पेशेंट गेट ट्रीटेड ना, द स्माइल दैट सेटिस्फैक्शन ये जो होता है ना, दैट्स रियली आई एम हैप्पी टू बी अ पीडियाट्रिशियन. एंड सर कलर्स हॉस्पिटल कब शुरू हुआ था फिर? Yeah, so I started my practice in 1991 and it was like a 30-bedded hospital. Day by day मेरा प्रैक्टिस इतना ज़्यादा बढ़ गया कि आई couldn't concentrate on a critical patient. Then within 10 years I realized that कि while doing my OPD in general patient 30 patient एक टाइम संभालना with my subordinate colleagues and junior colleagues, but I come to know that I am neglecting some critical issues like premature babies, intensive care, those who are critical. That is, we are seeing a pediatric critical care in India. तो उसके बाद मुझे लगा कि देर शुड बी अ नीड ऑफ सम गुड यूनिट that to be in Nagpur. It was not available in Nagpur. Then I contacted my 3-4 good friends and I told them there is a need. Initially, as usual, थोड़ा सा होता है, but it took 2 years to develop that bond. And then we started with 4. Then 4 के 4 हो गए. Now today, Colors is a 120-bedded hospital that to be best and one of the best in Vidarbha with a PICU, exclusive PICU and NICU. Now it's a 12 year almost we're done. क्या बात है Started. सर. Yes. एंड thank अभी you. अभी स्टिल मोर एक्सपेंशन इज Still more expansion. Now, that's the best thing we had done. It's a mother and child care unit. अगर मदर कोई ऐसी होती कि जिसका बच्चों immediately you want to shift to NICU, then there is no need to have a shifting. There is a delivery will be at our own place, Colors Hospital. That's बराबर. the सर ये कब आपको समझ में आया कि व्हाट वर्क यू आर डूइंग इसको नेशनल लेवल पे भी बहुत इम्पोर्टेंट है टू टेक दिस वर्क अक्रॉस? आई थिंक लीगेसी जो बोलते हैं ना कि उसमें है. मेरी माई फैमिली इज वेरी मच इन अ सोशलिज्म. माई फादर वॉज सो मच जो बोलते हैं ना कि दाता जैसे थे. मुझे आई सीन सिंस बिगिनिंग किसको भी कोई भी गरीब आया तो हेल्प करो, ये करो. मेरी फैमिली रेस्ट ऑफ द फैमिली वेर इन पॉलिटिक्स सोशल फिगर. दे वेरी गुड वर्क. RSS के वर्कर्स थे सब. तो उस टाइम से मुझे ऐसा लग रहा कि आई हैव टू डू समथिंग फॉर कंट्री, not restricted to yourself.
सिंस बर्थ, जैसे बचपन में था तो बचपन में आई वॉज हैड अ गणेश मंडल जिसमें हेल्थ चेकअप कैंप कर लेता था, खूब बच्चों को साथ में रखता था. देन आई वेंट टू कॉलेज में NSS NSUI ये सब, बट देर वॉज नो एट ऑल पॉलिटिकल एजेंडा. इट वॉज लाइक माई हॉबी, पैशन बन गया. और फिर जब प्रैक्टिस में आया तो प्रैक्टिस में आई हैव सीन कि जो कोई पॉलिसीज़ है बच्चों के लिए, पॉलिसीज़ है, बहुत लायंस में काम किया, हेल्थ चेकअप लेता था, बहुत सारे भाषण देता था, कहता. पर समहाउ मुझे लगता था कि ये तो दिस इज़ द जस्ट आइसबर्ग बोलते वैसे टाइप का, कि इसमें लोगों को कुछ मैं दे नहीं पा रहा हूँ. मैं जाता था, हेल्थ चेकअप करता था, 2-4 दिन के लिए होते थे, फिर से रोना चालू होता था कि सर कभी मेडिसिन नहीं मिला, ये नहीं मिले. देन मुझे लगा कि वी शुड हैव सम पोजीशन कि जहाँ पे अपन कुछ कर सके. एंड इंडियन एकेडमी पीडियाट्रिक वॉज द बेस्ट प्लेटफॉर्म विच आई थॉट वेयर एकेडमिक, सोशल एंड फॉर कलीग्स किया जाता. एंड दैट्स वाई दिस leadership quality I got as a legacy, but I developed on my own self. A lot of people शायद नहीं पता होगा सर, you are one of the few rare people जिन्होंने वैक्सीन ट्रायल्स किए हैं in pediatric age group, कोवैक्सीन and everything. Yeah. Let's shed some light on that कि pediatric vaccine trials, कोवैक्सीन के बारे में सर, what was that story? Yes, you know that very bad period. Deaths were going on. Nothing was there. Only COVID के लिए there was only symptomatic treatment. Beds were not available. The first thing what I done, that my hospital converted for our medico people, those who were not getting the bed. That's a charitable also. Whatsoever you give it, but you should get, because there was a necessity of bed. So I announced that my hospital is only for the. Second thing, when I came to that, there was a symptomatic treatment, no treatment was there. But what about prevention? Prevention is always better than it. Very true. That's the study started. The studies were for adult only, vaccine. Then I got the opportunity because I had done a lot of trials for vaccines. So naturally, when the study came about Covaxin, they approached me and I immediately instantly said, yes, I want to go for that. Only 4 centers were there, out of that 3 AIMS, and I was the only one person in private. क्या बात है सर? And we had done a study of 560, out of that 180 subjects were from. I was the highest in that study. More than AIMS? Yes. क्या बात है? Yeah. क्या बात है? पर सर ऐसे आपने यू हैव डन ट्रायल्स पहले भी बहुत. बच्चों में जब ट्रायल्स होते हैं, व्हाट आर द एथिकल प्रेशर्स जो आपको झेलने पड़ते हैं उस समय? डेफिनेटली एथिकल प्रेशर. सी देयर इज अ एथिकल प्रेशर फ्रॉम पेरेंट्स, मीडिया, गवर्नमेंट, सब लोगों से. बिकॉज अच्छा होता है, अच्छा होता है. अगर आउट ऑफ दिस 180 का एक को भी मेरा साइड इफेक्ट आता था तो वो बुमरैंग हो जाता था. बिकॉज दिस डेथ इज बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ स्टडी, बट it's because of Dr. Vasan Khalatkar. That is very important. And when you go in इसमें फंस जाते तो that is अलग. तुम्हारा लाइसेंस रद्द होने से लेके सब these are the ethical issues. But we were very lucky. We done that at 2 to 18 years age if the vaccine was not available. And immediately after that government gave it to, from 6 year onward, government started vaccination. Very good. पर सर अब जब ऐसे आप ट्रायल्स करते हैं, हाउ डू यू कम्युनिकेट टू द पेरेंट्स कि हम आपके बच्चे को ट्रायल में दे रहे हैं? वो हाउ डू दे गेट दैट एक्सेप्टेंस? That's very good question. Actually, initially, I also thought कि how to do, because hesitancy होता है ना. Obviously. Because that was a new vaccine and COVID was also going on. How to? So first I communicated with my all friends, those who are medico. What is going on? What are the advantage? What are the, through social media, through this Twitter, print media, and I was helped by print media very much, and my colleagues. To be your surprise, out of 180 patients, 70% were doctor's kid. क्या बात है? Yeah, that is a good trust building exercise. Yeah, trust building exercise, and they trusted on me. That is, it is not a vaccine. It was they were trusted. डॉक्टर वसंत खलटकर कर रहे हैं ना, अरे यार सही होगा एकदम. That's a great. हाँ, मेरा बच्चा आपके पास सेफ है ऐसा. Yes. अच्छा है. बट अभी सर, अभी वी आर सीइंग नाउअडेज, पिछले 10 साल से देयर इज अ लॉट ऑफ पब्लिक मिसट्रस्ट डॉक्टर्स को लेके. ऐसे इसमें बच्चों के ऊपर ट्रायल्स करना इज सच
Yeah. आई एम श्योर आप क्या चल इट वॉज अंडर टेंशन एकदम, कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत भी एक बार ऐसा छोटा सा चीज़ पेपर में आ गई थी कि कुछ बच्चों को एंटीबॉडी था, वो ट्रायल के पहले एंटीबॉडी थे कि नहीं देखना पड़ता, तो वो एंटीबॉडीज हुई करके लीक हुआ, तो लोग एकदम घबरा गए थे, अरे सही में जाना है कि नहीं सर, हम आप हमको वैक्सीन क्यों दे रहे हैं, हमारे बच्चे में तो वैसे ही एंटीबॉडीज होगा वगैरह वगैरह, दिस आर द थिंग्स। अच्छा है। थोड़ा सा आई वांट टू टॉक टू यू सर अबाउट ये जो आपको हाईएस्ट आईएमए अवार्ड मिला था, एंड इट इज़ ऑफन कंपेयर्ड इन पैरेलल टू द बीसी रॉय अवार्ड. Let's talk about that, sir. First thing, since beginning, I never worked for award. So, my aim is to just serve country, my colleague, and our children. That was my aim for a beginning. So automatically, I got call from IMA that you had to apply for this, and that I got the award. So basically, this award is like a motivation. It gives you different responsibility, and it shows you path that you have to work more and more. It's not a stoppage, it's not a milestone, but you have to work more hard. That's why it's a simple example. Initially, every doctor, young doctor, is doing practice for earning money and increasing, but later on it's a responsibility कि मेरे हाथ से पेशेंट खराब नहीं होना चाहिए मेरा नाम. It's like that. वो अवार्ड्स आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है. यस, बहुत बड़ी. और दिस माई क्रेडिट गोज टू माई ऑल फ्रेंड्स, फैमिली, माई कम्युनिटी, एंड स्पेशली माई बैचमेट्स, दैट आवर 81 बैच इज स्ट्रॉन्ग. वी आर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. वो सब बोलते रहे वसंत तुम आगे बढ़ो, बस दैट्स ऑल. इस अवार्ड ने सर क्या आपकी लाइफ में चेंज किया, और क्या आप कर रहे थे वो ऑलरेडी वैलिडेट हो गया? वैलिडेशन इज, आई कांट जज वैलिडेशन, लोग जज करेंगे, पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई इसमें. नाउ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स मेरे दिमाग में आ रहा है. मेरे खुद का हॉस्पिटल भी जो बनने जा रहा है अभी, नाउ इट्स 120 बेड, तो उसमें से 30% का मैं सोशलाइज कैसा करूँ, उसमें चैरिटेबल कैसा करूँ, ये मेरे दिमाग में है. अभी तक मैं मेरे खुद का हॉस्पिटल में मेरा पैसा लगा हुआ है, ये हुआ तो मैं नहीं कर सकता वगैरह सोचता था, पर आज मैं ये पहला माइंडसेट मेरा तैयार हो गया. पर रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर बहुत बड़ा आ गया कि समाज में तुम जा रहे तो समाज में तुम्हारे बारे में लोग क्या बोलेंगे. एंड फर्स्ट थिंग, दिस अवार्ड इज़ नॉट अ स्टॉप गैप. नहीं, बिल्कुल स्टॉप गैप नहीं है. आखिरी दिन तक मैं तो सोच रहा आखिरी दिन तक सम गुड प्रोजेक्ट. There are so many projects coming in mind for child health or adult health, whatsoever. But I'm definitely going to go for a social cause in future. And award के ऊपर award खींचता है वैसे ही है. Automatically this award, after that award, I received so many awards. There are 4 to 5 international award and 3 national award I got. But that shows conviction. You're on the right path. आई थिंक दिस इज लाइक अ स्टेपिंग स्टोन. इसके बाद एक के ऊपर एक अपन जा रहे हैं सर. लेट्स टॉक अबाउट प्रेसिडेंसी सर. आपकी यू हैव ऑलमोस्ट 50,000 मेंबर्स ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स. आई थिंक दिस इज द हाईएस्ट एवर मेंबरशिप आपके टेन्योर में. तो ये जर्नी बताइए सर आईएपी की. आईएपी की जर्नी मैं स्टार्टेड इन ईयर, एक्चुअली मैं 86 में आई एंटर्ड इन सब्जेक्ट पीडियाट्रिक. फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड pediatric. Initially we were fighting for our increment, our क्या बोलते हैं उसको, जैसे हमारे हक के लिए लड़ते थे कि रेसिडेंट डॉक्टर के लिए. दैट टाइम आई वाज अ मार्ड लीडर, तो उसके लिए लड़ते थे हम लोग कि हमारी लिविंग कंडीशन अच्छी करो. तो पहले टाइम हमारे इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल्स रिनोवेट हो गए थे वो टाइम. दैट टाइम आप मार्ड के तो वो टाइम. बाद में हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन का जो इशू आया था, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम भी बिकॉज देर वर तो वी मेट वाइस चांसलर, तो सीट्स का इजीली हो गया था. दैट वाज द इम्पोर्टेंट माइलस्टोन. वो घुसते गया. देन इधर आने के बाद जब मैंने बताया कि मेरे को ऐसा लगा कि आईपी इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि जिसमें मैं घुसा. सो द फर्स्ट थिंग आई बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ द नागपुर ब्रांच, लोकल ब्रांच. एंड दैट टाइम जो अवार्ड्स मिले, दैट टाइम इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक 5 अवार्ड देते थे. तो ऑल 5 अवार्ड्स बिकॉज ऑफ वर्कमैनशिप ऑफ माइन एंड माई कलीग्स, जो नागपुर कलीग है, 5 अवार्ड हमको मिला. दैट वॉज द, एज आई सेड कि अवार्ड तुमको सिखाता है कि मोटिवेशन. देन आई स्टार्टेड टू वर्क एट नेशनल लेवल.
नेशनल लेवल पे 2009-10 में मैं आई बिकेम एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर, फिर 14-15 में अगेन एग्जीक्यूटिव, ऐसे 4 टाइम एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर रहने के बाद we had done a PDCon, national conference. That happens in Nagpur. Second, it was in 1992 first time. And secondly, it was a major milestone for my leadership that we managed 8,000 delegates, that to be in Nagpur city with everything. everything. 1992. 19, no, it was in 1980, 2018. 2018. Okay. We had 1992. Initially, it was done. But that time our membership was only 2,000 members. Now with the 50,000 membership and 8,000 delegates attended. That was it. Then I got the call from everyone that you should go proceed for a presidency and we want president like you. Then धीरे धीरे कारवा चलते गया, लोग जुड़ते गए ना, I became president for year 2025. पर सर हर प्रेसिडेंटशिप में ना देयर इज अ विजन हमेशा. या एवरी प्रेसिडेंट उनके साथ एक विजन लेके आता है. तो आपकी क्या विजन थी इस बार आईएपी के प्रेसिडेंटशिप पे? My vision was a 3 point that to serve children, colleagues and country. तो पहले तो कंट्री आऊँगा. कंट्री के लिए आई डन सो मेनी थिंग्स लाइक WHO, गावी, यूनिसेफ, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ पोलियो, थैलेसेमिया, इनके साथ बैकअप करके. सेकेंड थिंग, आई मेड द गवर्नमेंट टू दैट देयर शुड बी ओपिनियन ऑफ अ पीडियाट्रिक प्रेसिडेंट कि कोई भी अगर कोविड का लफ्ज देना है कि नहीं, तो यू हैव टू आस्क द कोविड, दैट्स गेट डन. नाउ गवर्नमेंट इज आस्किंग प्रेसिडेंट दैट सर ये करना है कि अर्थात हमारी सब कमिटीज़ रहती है, ये रहती है. देन फॉर कलीग्स देर आर सो मेनी स्कीम्स, जैसे फैमिली बेनिफिट सोसाइटी स्कीम, लाइक इंश्योरेंस स्कीम करा. एकेडमिक में बहुत सारा आगे चला गया. और फॉर चिल्ड्रन आप बोलोगे तो फर्स्ट इज सो मेनी सोशल प्रोग्राम. वन इज आईपी के बाद कम्युनिटी के साथ, जिसमें लोगों को हमने बताया कि अगर एनीमिया होता है तो क्या करना चाहिए, डाउन सिंड्रोम होता है तो क्या होना चाहिए उन्हें. देन वन इज अ सारथी प्रोजेक्ट. सारथी प्रोजेक्ट इज द यूनिक प्रोजेक्ट. हम लोगों ने 20 जगह अंडर सर्व चिल्ड्रन जो रहते उनको अडॉप्ट करने. जैसे नागपुर में 40 अंडर सर्व बच्चों को अडॉप्ट किया, और पीडियाट्रिशियन इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दो चाइल्ड अलॉन्ग विथ ड्रग्स, उनका हाइजीन, हेल्थ, मेंटल हेल्थ सबका करेंगे. और 1 साल बाद एग्जैक्टली हमको क्या मिलता है उसका रिपोर्ट वो देखेंगे. दैट वी आर गोइंग टू गिव द गवर्नमेंट कंटिन्यूस फॉलोअप करेंगे. दैट्स अ सारथी प्रोजेक्ट. दिस इज फॉर चिल्ड्रन. अच्छा है. पर सर ये आईपी के बाद कम्युनिटी के साथ दिस इज मोस्टली अबाउट अवेयरनेस. नो, इट्स नॉट अवेयरनेस. हम लोग क्या करते हैं, वी हैव मेड अ वन बस. ये बस दिस इज बाय बाय एनीमिया बस. ये बस एक गांव में जाएगी. सपोज नागपुर में वी विल चूज 2000 चिल्ड्रन. उनका पहले हमारा वहाँ का लोकल जो ब्रांच है वो हेल्थ चेकअप करेगा. हेल्थ चेकअप करने के बाद उनको जो बच्चों में एनीमिया दिखता है, ऐसा लगता है कि एनीमिया का लक्षण है, तो उनका हीमोग्लोबिन होगा. अब हीमोग्लोबिन होने के बाद उनको जो नीडेड ड्रग है, आयरन हो गया, प्रोटीन हो गया, फोलिक एसिड हो गया, वो देंगे. और ये बस 3 महीने बाद फिर से वही गांव में आएगी, जैसे नागपुर में आएगी, और उसमें क्या फ़ायदा हुआ वो देखेंगे. दैट्स डेफिनेटली. उसके साथ वो बस के साथ एक हेल्थ अवेयरनेस का कैंप रहता था. हमारे जो डॉक्टर्स रहते उनको एनीमिया के बारे में लेक्चर्स लेते थे. ये सब दिस इज बेसिकली अवेयरनेस प्लस स्क्रीनिंग प्लस ट्रीटमेंट. प्रोटीन एनर्जी मैल न्यूट्रिशन, हाँ, अभी बहुत बढ़ गया सर एकदम से. Yeah. क्यों, वाई जबकि व्हेन द कंट्री इज प्रोग्रेसिंग सो नाइसली. ये बट वन ऑफ द गुड थिंग इज दैट कि प्रोटीन एनर्जी, दिस इज सैम, एक्यूट मॉलन्यूट्रिशन जो बोलते वो बहुत ज़्यादा है. दिस इज अगेन रिलेटेड टू सम पॉवर्टी. सेकेंड थिंग इलिटरेसी, कि अपने बच्चे को प्रोटीन देना चाहिए ये लोगों से. और एक बहुत बड़ा मैसेज मैं देना चाहता कि बच्चा 6 महीने तक होने का तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग जो कि न्यूट्रिशियस रहना चाहिए, जिसमें प्रोटीन हो, फैट हो, आयरन हो, ऐसा रहना चाहिए. और जब कभी बच्चे में ऐसे लक्षण देते कि अपने बच्चे का वेट नहीं बढ़ रहा या बच्चा बारीक हो रहा, कभी कभी मोटा होना भी इट्स वन ऑफ द साइन ऑफ मालन्यूट्रिशन, तो उसमें अपने डॉक्टर्स को कंसर्न करना चाहिए. वेदर इट्स गवर्नमेंट डॉक्टर करो, प्राइवेट करो, करना चाहिए. आई वॉज रीडिंग अ सर्वे बीच में कि स्टंटेड ग्रोथ बहुत दिख रही है इन द लास्ट फ्यू ईयर्स. या ये स्टंटेड ग्रोथ का एक बहुत बड़ा रीज़न है तो माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी.
जैसे मैंने बताया ना, आयरन, प्रोटीन, ये जैसे फॉलिक एसिड, ये सब चीज़ें हैं ना, तो उसका एक स्टंटेड ग्रोथ के लिए एक और फैक्टर रहता कि मदर एंड फादर का हाइट, उसका एक रेशियो किया जाता है, वो हिसाब से अगर वो बीन निकाल के वो बच्चे का हाइट इतना होगा, बट दैट ग्रोथ चार्ट शुड गेट मेंटेन। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक ने एक ग्रोथ चार्ट बनाया जिसमें हाइट और वेट, इसका एक चार्टिंग होता, तो बच्चा सैम में जा रहा, माल न्यूट्रिशन में जा रहा, कि ये हो रहा, तो वो मैं तो बोलता कि पेरेंट्स से बोलना चाहिए कि हमारे बच्चे का ग्रोथ चार्ट बनाओ कर। हाँ, ये बहुत जरूरी है, इतना अवेयरनेस होना चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। गवर्नमेंट में बनता है, प्राइवेट में भी बनना चाहिए पूरा लोगों वेरी का। ट्रू। शुडंट वी हैव अ मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड? इतना पॉपुलेशन इतना बड़ा होना तो चाहिए, मेरे को लगता है गवर्नमेंट में। एक्सलेंट क्वेश्चन, एक्सलेंट क्वेश्चन। आई एम वर्किंग सिंस लास्ट 3 ईयर ऑन दिस सब्जेक्ट। क्या होता है कि अपने यहाँ जो मिनिस्ट्री है ना, दैट इज़ अ चाइल्ड हेल्थ एंड मदर का है, दैट इज़ MCW जो बोलते हैं, उसमें क्या होता है, बहुत बार बच्चों के जो इश्यूज हम लोग लेके जाते हैं, तो बोलते कि अरे यार मैटरनल इश्यूज बहुत ज़्यादा है ना, उसके तरफ हमारा ध्यान है, और मैटरनल इश्यूज जब आते हैं तब बच्चों के काम में इसमें क्या रखड़ जाता है, और बच्चों के ऊपर काम ही नहीं होता है, इट्स इवन सेम। सो हम लोगों ने एक मेमोरेंडम बनाया IAP की तरफ से, एंड वी सेंड इट टू सो मेनी लीडर्स। जैसे यहाँ के 15 लीडर, हमारे यहाँ के जो जैसे मुंबई में जो है, मुंबई के लोकल अमेरिका पकड़ेगा, मैं इंदौर में गया था तो इंदौर में पकड़ा, सब लोगों को हम एक मेमोरेंडम दे रहे कि देयर शुड बी अ सेपरेट चाइल्ड हेल्थ मिनिस्ट्री, बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन से बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। नागपुर के 2 डिस्ट्रिक्ट होंगे तो ज़्यादा काम होंगे कि जितना नागपुर के 1 डिस्ट्रिक्ट का काम है। इट्स लाइक दैट। सो जस्ट वी आर फाइटिंग फॉर दिस, दैट्स फॉर चाइल्ड हेल्थ। प्रॉबली हो जाना चाहिए। इट विल टेक टाइम, बट आई एम होपफुल दैट 100%। वहाँ से सर आई वांट टू टेक यू टू थोड़ा सा ग्लोबल स्टेज में, इन टर्म्स ऑफ पीडियाट्रिक हेल्थ। इंडिया ग्लोबल रिकग्निशन ज़्यादा है नहीं हमको, तो ये ग्लोबल एडवोकेसी और रिकग्निशन के लिए यू हैव वर्कड अ लॉट। आर वी रिकग्नाइज्ड अभी कि स्टिल एन ऑन गोइंग प्रोसेस? Now it's happening. अच्छा। This year we have made a lot of effort for this. One of the thing is that कि अपने बच्चों को अगर बाहर फेलोशिप करने जाना है तो बहुत मुश्किल होता था। आई डिड टाइप बाय IAP विथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी, जिसमें जो बच्चे MD होते हैं उसके बाद अगर उनको फेलोशिप करना है विदाउट गिविंग एनी मनी, विदाउट एनीथिंग, 15 स्टूडेंट को ग्लोबल लेवल पे उनको फेलोशिप मिलना है। Second is the history of Indian Academy of Pediatrics. We have done the first time international conference along with the World Academy of Pediatric Emergency, that is the American Academy of Pediatrics. क्या बात है, जो कि पहले कभी अपने को इंडियाज को ये करते नहीं थे। अभी nowadays they are saying, because it was attended by 200 Nagpur All India pediatrician, and we had a stage because we had a partnership. सो अभी वो लोग बोलते कि हमको जो कोई कॉन्फ्रेंस करना है वो इंडिया के साथ करना है इधर। और एक इंडियन इंटरनेशनल पीडियाट्रिक एसोसिएशन है, उसमें इंडिया के डॉक्टर नवीन ठक्कर करके है, वो ही इज द प्रेसिडेंट, और सो मेनी पीपल। तो सो इंडिया को अभी वेयर वी आर लैकिंग, फ्रैंकली स्पीकिंग, वी आर लैकिंग इन रिसर्च बेसिकली। और वो लोगों का जो रहता है रिसर्च बेसिस पक्का रहता, तो वो कुछ भी बोले तो भी ऐसा लगता है कि अरे क्या बोल रहे हैं। Our clinical knowledge is very good, our data is good, subjects are there. जैसे कोवैक्सीन को उन लोगों को मिला नहीं, उतना सब्जेक्ट अपने को मिल गया इतना। वेरी ट्रू। I could do it. तो मैं मेरे एकेडमिक्स फ्रेंड्स को यही बोलूँगा कि we have to take care of research now. बट a lot of my friends जो रिसर्च में है सर, वो कहते ग्रांट ही नहीं मिलता। एग्जैक्टली, ग्रांट ही नहीं मिलता। एग्जैक्टली, रिसर्च के लिए तो अलग सेट करना है। अभी ICMR का काफ़ी अच्छा काम करे ICMR, पर स्टिल वहाँ पे भी लोग ऐसे बैठे रहते कि वो ग्रांट सैंक्शन ही करते एकदम। सो ऑटोमेटिकली ग्रांट आ जाएगी, उसको हो जाएगी, इथिकल हो जाएगा, सब अच्छे से हो जाएगा एकदम। आर वी इमरजेंसी प्रिपरेशन में क्या गड़बड़ है सर अभी इन टर्म्स ऑफ चाइल्ड हेल्थ? फ्रैंकली स्पीकिंग वी आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एनी पीडियाट्रिक इमरजेंसी। अडल्ट इमरजेंसी को जितना गवर्नमेंट की तरफ से स्टेक मिलता है ना, उतना नहीं मिलता है। दैट्स वाई पीडियाट्रिक इमरजेंसी इज़ नॉट डेवलपिंग सो मच। एक्चुअली देर इज़ अ नीड
The first center, first DM in pediatric emergency started in Raipur. After that, now Chandigarh, Delhi, और 4 जगह. But there is a need of DM as well as DNB for pediatric emergency. Definitely बहुत बड़ा नीड है, बिकॉज अपने यहाँ प्रोटोकॉल्स ही नहीं है. व्हाट्स एवर जो चल रहा है तो पीडियाट्रिक इमरजेंसी केयर, पीडियाट्रिक इंडियन सिक्योर यूनिट वाले ही करते, दोस्त पीडियाट्रिशियन वो इमरजेंसी हैंडल करते. एज सच पीडियाट्रिक लाइक अडल्ट इमरजेंसी मेडिसिन है ना, वैसा नहीं है. एंड दैट्स अ नीड ऑफ द डे. जस्ट सब जो लोग ये सुन रहे हैं उनको इफ यू कुड जस्ट टेल देम कि पीडियाट्रिक इमरजेंसीज क्या क्या होती है कि इस टाइम पे यू शुड स्टार्ट रशिंग टू द हॉस्पिटल. या हाँ, दिस इज अगेन वन गुड क्वेश्चन. जैसे पीडियाट्रिक इमरजेंसी में बच्चे को कभी फर्स्ट थिंग तो बहुत जैसे ब्रेथलेसनेस आ जाती है, बच्चा बहुत धांपने लगता है, बच्चा ठंडा पड़ जाता है, बच्चे को एक आधे बार डायरिया लगता है, और वो डिहाइड्रेशन के साइंस में ठंडा पड़ना, टंग सूखे होना, पल्सेस बढ़ना, ये चीज़ें कहते फॉरेन बॉडी बच्चा निकल जाता है, और फॉरेन बॉडी निकलने के बाद उसकी सांस बहुत चलती है. दैट्स अगेन वन ऑफ द दीज आर द फ्यू. एंड ट्रॉमा, द इम्पॉर्टेंट इज ट्रॉमा में तो लोगों ने घर पे रुकना ही नहीं है. यू हैव टू रश टू हॉस्पिटल वेदर इट्स नॉर्मल और समथिंग पैथोलॉजिकल. आई रिमेंबर अ केस सर, दिवाली में फायर क्रैकर इंजुरी आँख में, 6 साल का बच्चा. यस, वो गया सर उसका आँख, मतलब वी कुड नॉट डू एनीथिंग. वो फैमिली उसको नेक्स्ट डे लेके आए. तब तक अपने हाथ से पूरा टोल्ड देम कि ठीक है डॉक्टर्स नहीं थे बट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वर वर्किंग. आप लेके जाते, एम्स था, जीएमसी था, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता था. सही बात है. बड़ा बुरा लगा सर देख के. वो नहीं सिंपल है ना. कभी फॉरेन बॉडी से जैसे अपने यहाँ कस्टर्ड एप्पल में सीताफल खाते हैं लोगों, सीताफल खाने के बाद ये गसे में विंड पाइप में अटक जाती है, उसके बाद उसका रेस्पिरेटरी, ये तो कुछ नहीं. लोग अरे थोड़ा सा हुआ होगा सर्दी खांसी, लोग उसी टाइम आए तो इमीडिएटली विद इन 5 मिनट्स उसका ब्रोंकोस्कोपी से निकाल के पूरा बच्चा अच्छा हो जाता है. तुम्हारा क्या है? और आई थिंक बच्चों में तो साइनोसिस बहुत दिखता भी होगा, बहुत जल्दी दिखता है सर. वेरी ट्रू. पब्लिक हेल्थ पे सर फ्यू क्वेश्चंस. बाय बाय एनीमिया कैंपेन थोड़ा अच्छे से बताइए सर. Yeah, bye anemia, I already told. We had a bus, we had a that screening method, and our volunteers as a pediatrician जो जाते थे वो along with our one driver, one technician in that bus with a big screen, awareness screen. हम लोगों का बस यूजुअली जो हमारी टीम है वो एक जगह जाती है जहाँ से 2000 बच्चों को हम स्क्रीनिंग करते थे. बस पूरी मार्केट में खड़ी रहती थी जहाँ पे बड़ा स्क्रीन लगा रहता था, जो कि जहाँ बाजार है वहाँ पे, सो दैट मल्टीपल पीपल यूज़ करें. अलॉन्ग विद दैट थोड़ा सा हम लोगों ने एक एडिशनल एक दिशा नाम की फिल्म बनाई है. दिशा नाम की फिल्म इज़ ऑन ड्रग अब्यूज अवेयरनेस. वो यूट्यूब पे अवेलेबल, दिशा बाय IAP करके डालोगे, मैं लिंक डाल दूंगा. डाले. सेकंड इज ओबेसिटी पे फिल्म बनाई हम लोगों ने, यू टर्न. अगर ये 2 फिल्म वहाँ दिखा देते थे, और एनीमिया के छोटे छोटे क्लिपिंग बनाए थे कि क्या खाने से एनीमिया को फ़ायदा हो सकता है, क्या क्या फ्रूट्स खाना चाहिए, क्या मटेरियल का, जैसे जैगरी खाओ, ये खाओ, वो बनाए थे. तो लोगों को अवेयरनेस बहुत अच्छा है. तो ऑटोमेटिकली प्रिंट मीडिया में जाता था. और इसका हम करने के लिए देयर इज लोकल लीडर को बुलाते थे इनॉग्रेशन को. सो ऑटोमेटिकली उसको एक ग्लोरी आ जाता था प्रोग्राम को. वो हैड फिर गाँव में जैसे संदल वगैरह निकालते हैं ना, वो टाइम का हम लोग एक ऐसे अवेयरनेस गांव में घूम रही, सो दैट ऑटोमेटिक पब्लिक को मालूम हो जाता है कि व्हाट इज़ एनीमिया. एक गाना भी बना दिया था बाय बाय एनीमिया पे. तो इससे अवेयरनेस भी होता था, व्हाट इज़ द एनीमिया ये भी मालूम होता था लोगों को, और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए वो भी मालूम जाता एकदम. आजकल बच्चों के लिए रोड सेफ्टी भी एक थोड़ा सा इशू है, एडोलेसेंट हेल्थ को लेके. यस, वी हैव जस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड के साथ हुआ. बेबी वॉज इन द कार, गाड़ी एकदम से ब्रेक हुआ, पीछे से एकदम से बेबी फेल डाउन, एंड ही हैड फॉरगॉटन टू क्या वट एवर दो छोटी सीट आती है उसको स्ट्रैप नहीं किया. आई विल हाईलाइट वेरी इंपॉर्टेंट. रोड सेफ्टी हेलमेट के लिए बहुत जरूरी. अडोसेंस, अब वी आर हैविंग एन अडोसेंस चैप्टर एंड दैट रोड सेफ्टी के ऊपर खूब काम कर रहे हैं हम लोग. दैट अडोसेंस ने क्या करना चाहिए, हेलमेट, फर्स्ट थिंग हेलमेट. डोंट ड्रिंक डोंट ड्राइव, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी ड्रग लेके मत करो, दैट्स अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट. ये अडोसेंस चैप्टर का. बट दिस ईयर आई हैड 15 days बिफोर टॉक विथ
Gadkari ji, we have everything is ready. We want to present in front of that what is the necessity of car seat for children. That is very important, जो कि अपने इंडिया में नहीं है. और so many accidents, it's really pitiable. एक्सीडेंट बच्चों के जो होते हैं, this just without belt, without that car seat, कुछ नहीं होता. एक 2,000 रुपये की भी कार सीट नहीं मिलेगी. वो तो उसका एक माउंट होता है जो सीट बेल्ट को लग जाता है उसके बाद दिक्कत है. तो रोड सेफ्टी पे अलॉन्ग विथ यूनिसेफ, गडकरी जी तो मालूम ही उनको तो बहुत पैशन है ये सब चीज़ों का, वो और इंडियन एकेडमी डेफिनेटली विद इन 6 मंथ कुछ तो अच्छा हो जाएगा इसके लिए. हाउ डू प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स कंट्रीब्यूट टू पब्लिक हेल्थ इन टर्म्स ऑफ पीडियाट्रिक्स में? जैसे क्या होता है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर जो रहते तो लोगों का अरे पैसा कमाने के लिए बैठे, बट इट्स नॉट लाइक दैट. हर प्राइवेट प्रैक्टिशनर समथिंग चैरिटेबल करता ही है, वेदर से इन टर्म ऑफ टेकिंग लेस अमाउंट ऑफ फीस. सपोज मेरा 500 का है, वो 200 लेता है, इट्स लाइक अ चैरिटी. वेविंग द बिल्स, सो मेनी होता है, हमारे पास भी आते हैं, इमरजेंसी में आते हैं पेशेंट का इकोनॉमिकल कंडीशन मालूम नहीं रहता है, तो उसमें तुम लोग. दूसरा, यू सी द मैक्सिमम वैक्सीनेशंस आर गेट डन बाय प्राइवेट प्रैक्टिशनर. ये फाइनेंशियल बर्डन जो हेल्थ के कारण हो सकता है, जैसे अगर रोटा वायरस का वैक्सीन हमारे यहाँ लगता है तो रोटा डायरिया नहीं होगा तो पेशेंट के पैसे बचेंगे, गवर्नमेंट को कितना पैसा. दिस इज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में पब्लिक इज. आई सी आउट ऑफ दैट 50% आर देयर इन सोशल वर्क. गवर्नमेंट ने कोई भी प्रोजेक्ट को बुलाया तो प्राइवेट प्रैक्टिशनर कभी नहीं बोलते हैं लोग. वी आर हैविंग सो मेनी प्रोग्राम, जैसे न्योनेटल रिसर्च प्रोग्राम IAP ने जो किया है, तो ये न्योनेटल रिसर्च प्रोग्राम जो हमने बनाया उसमें 222,000 हेल्थ वर्कर हमने प्रिपेयर किए कि अगर बच्चा होने के बाद रोता नहीं है तो क्या करना चाहिए. बराबर. और बिकॉज ऑफ दैट वी हैव स्टडीड दैट NMR जो 40% था, 40 पर 1000 था, दैट रिड्यूस टू 18%. इतना ज़्यादा कम करें. दैट इज द स्टडी. क्या बात. न्यूरोलॉजी रिसर्च. देन इज NTP, नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम. इसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर का बहुत बड़ा रोल है. आज प्राइवेट प्रैक्टिशनर ने बोला कि हम लोग इसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट दे आर डूइंग द लॉट ऑफ वर्क. और ट्यूबरकुलोसिस का इंसिडेंस भी डिक्रीज हो रहा. रजिस्टर्ड ट्यूबरकुलोसिस जो है वो क्या है क्या नहीं वो लोगों को मालूम पड़ रहा. दैट इज़ द थिंग. और गवर्नमेंट में डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वर्कलोड है. गवर्नमेंट में जो काम करते हैं वी आर नॉट ब्लेमिंग देम, बट वर्कलोड इतना ज़्यादा है तो कहाँ देखे. इन टर्म्स ऑफ वैक्सीनेशन सर, यस, बहुत पेरेंट्स को पता ही होगा, पर एक रिकैप प्लीज़ दे दीजिए कि बच्चों में क्या क्या वैक्सीन्स क्या क्या स्टेज पे देना ही है. या अगर नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की बात करेंगे अपन, अपने सब पेरेंट्स को मालूम होना चाहिए कि विद इन 24 आवर्स एट बर्थ में, जैसे बच्चा का जन्म होता है तो उसके बाद 24 आवर्स में उसको पोलियो, BCG और हेपेटाइटिस B ये 100% मिलना ही चाहिए. नहीं डॉक्टर देता होगा तो पेरेंट ने बोलना चाहिए कि हमसे कुछ भी करो पर देना है. दैट्स ऑल. सेकेंडली, एट द एज ऑफ 1.5 मंथ, 2.5 मंथ, 3.5 रेगुलर पोलियो ट्रिपल के बूस्टर डोजेस अलॉन्ग विथ हेपेटाइटिस B, निमोकोकल वैक्सीन ये देना है. बच्चा 9 महीने का होता है तो मीजल्स का वैक्सीन देना चाहिए, उसको MR वैक्सीन बोलते हैं आजकल. और एट एज ऑफ 15 मंथ अगेन मीजल मम्स रूबेला का वैक्सीन, और उसके बाद 18 मंथ में पोलियो ट्रिपल का बूस्टर डोज अलॉन्ग विथ हेपेटाइटिस. बट ये दिस आर द ऑल गवर्नमेंट. बाद में 5 साल बाद एक वैक्सीन आएगा, DT का आएगा, 10 साल बाद आएगा, ये तो गवर्नमेंट सेटअप में नेशनल में. बट नाउ डेज निमोकोकल वैक्सीन. बट समथिंग बियॉन्ड दैट, इफ यू आर हैविंग अफोर्डेबिलिटी और यू कैन, जो देखो वैक्सीनेशन मैंने पहले, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. बस सबको ये समझा था कि फ्लू होने के बाद 50,000 रुपये खर्चा करने से फ्लू का वैक्सीन अगर 2,000 में मिलता है तुमको, वाई नॉट टू गिव. एक तुम्हारे तो फ्लू का वैक्सीन एट एज ऑफ 6 मंथ देना चाहिए. टाइफॉइड का वैक्सीन एट द एज ऑफ 9 मंथ देना चाहिए. अगर 6 मंथ में नहीं देते तो 1 ईयर में देना चाहिए. और हेपेटाइटिस A, क्योंकि हेपेटाइटिस B तो गवर्नमेंट में मिल जाता है, हेपेटाइटिस A चिकन पॉक्स ये अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट में, तो वो वैक्सीन देना चाहिए. बाकी वैक्सीन तो फिर अभी कोवैक्सीन एवरीथिंग गवर्नमेंट में अवेलेबल. नाउ डेज सो मेनी वैक्सीन्स और ऑप्शनल वैक्सीन, दीज आर कॉल्ड एज ऑप्शनल वैक्सीन. अगर अफोर्डेबिलिटी है तो वैक्सीनेशन इज लाइक, मैंने पहले बताया वैक्सीनेशन नाउ यू हैव टू कंसीडर एज अ ड्रग. ये दवाई समझो तुम, प्रिवेंशन मत समझो. और जो वैक्सीन हेजिटेंसी है,
एक कम्युनिटी, कुछ कम्युनिटी में ऐसा है कि नहीं दिया जाता. In spite of all that, initially it was a 65% coverage, now it gone to 83% coverage. पर जो 17% कवरेज रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ द मिथ एंड मिसट्रस्ट कि वैक्सीन से बच्चे को डेथ हो सकती है, होती है, कुछ नहीं होता. और सेकंड मिथ ऐसा है कि नहीं दिया तो क्या होता, हम बड़े नहीं हुए क्या विदाउट वैक्सीन के, हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा जो थे वो तो कुछ नहीं हुए. पर वो टाइम क्या होता था, मॉर्टिलिटी देखी क्या, रोटा वायरस से मॉर्टिलिटी क्या होती थी, पोलियो के कितने बच्चे तुम्हारी दोस्त भाईजान हैं कि जो पोलियो से ग्रस्त है, एक हाथ से काम नहीं कर सकते क्या. तो ऐसा तुम बच्चों को उसके हक से वंचित कर रहे. मैं वही बोलूँगा कि इट्स उनका हक है और वो उनका हक उनको बच्चों को जरूर मिलना चाहिए. इसलिए मैं कितना भी झगड़ सकता बच्चों के हक लिए. अभी ऐसे लोग मैंने कहीं देख रहा था सर कि कोविड वैक्सीन नहीं लेंगे, अनटेस्टेड है, उससे ये हो रहा है. वैक्सीन ले लो ना यार, क्यों इतना सोच. सही है. आई मीन some things can't be explained. Yes. अभी सर आपके साथ so many years of medical practice, you are at the pinnacle of everything right now. आपने आपके अंडर बहुत सारे न्यू डॉक्टर्स भी देखे होंगे, अपकमिंग डॉक्टर्स हैं, योर ओन डॉटर एंड सन, एवरीबडी. What are you seeing the young doctors doing differently today and what are they missing out? क्या अच्छा कर रहे हैं और क्या मिस हो रहा है जो उन्होंने करना भी चाहिए? Yeah, I'm really happy that young generation is coming with the new modalities. The first thing and the best of the best. Whatsoever we couldn't do because of a lack of resources. आज MBBS MD हुआ वाला बच्चा कोई भी फॉरेन जाता है, कुछ तो नया सीख के आता है, तो विच इज़ द नीड. ठीक द एग्जाम्पल ऑफ नागपुर सिटी. आज नागपुर वालों को 15 साल पहले जो बॉम्बे दिल्ली जाना पड़ता था, आज जाने की जरूरत ही नहीं. एवरीथिंग इज पॉसिबल. कुछ भी हो, एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, कि ब्रेन की सर्जरी हो, कि प्रोटॉन थेरेपी, क्या नहीं होना, सब होता है यहाँ पे. तो दिस इज द बेस्ट थिंग आई विल टेल अबाउट द यंग जनरेशन. दे आर वेरी एंथुजियास्टिक, दैट्स अ गुड थिंग, बट डोंट बी वेरी एग्रेसिव कि मेरा प्रैक्टिस कोई भी बाय हुक एंड क्रुक मेथड से बढ़ना चाहिए. ये यंग जनरेशन ने नहीं करना चाहिए. योर गुडविल, यू टू फर्स्ट गेन गुडविल. मनी ऑटोमेटिकली तुम्हारे पीछे पीछे भागेगा, दौड़ेगा. ओनली वॉट वी हैड डन प्रैक्टिस 24/7. I am fully agree, nobody should do that. You have to share your practice to somebody. 12 घंटे तुम करो, 12 घंटे तुम करो. And my sincere advice that to go for a group practice. That is always better because your responsibility is share. Looking at the today's scenario, किसी को हार्ट अटैक आ गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, कोई सोता ही नहीं है प्रैक्टिस के चक्कर में, डाइवर्स हो रहे. This thing should not happen. It increases your stress. So group practice, थोड़ा कम पैसा मिला तो भी चलेगा, but life should be enjoyable. Enjoy the life. Very true. Yes. What कुछ ऐसे skills डॉक्टर्स ने सीखने चाहिए other than the textbook? Exactly. That you have to go for outdoor games, yoga. दोस्तों को मिलो. भाई दोस्तों को मिले इसका मतलब ये नहीं कि पार्टीज करना चाहिए. कम्युनिकेशन, दोस्तों के साथ बातें करो, गप्पा मारो, एक जगह मिलो, छोटी सी पार्टी करो, तुम मिलो, ऑफलोड हो जाओ और ऑफलोड हो जाओ. और टेक केयर ऑफ योर फैमिली. फैमिली मीन्स मदर फादर भी है तुम्हारे पास, उनका करो. तुम्हारी जॉइंट फैमिली तो जॉइंट फैमिली का देखो. यू हैव टू इन्वॉल्व इन नॉट ओनली पेशेंट नहीं करना चाहिए. हाँ वो तो है. यस. मेंटरशिप फिलॉसफी अभी भी अच्छा है क्या सर? मतलब 100% मेंटर इज मैंडेटरी. हम हर सेंटेंस में बोलते हैं कि भाई मेरा मेंटर था. दैट्स द थिंग व्हाई वी आर सेटिस्फाइड, क्योंकि हमारा मेंटर करता था, वैसे हम कुछ कर रहे हैं. ये मेंटरशिप इज मैंडेटरी. किसी को तो गुरु बनाना ही पड़ेगा. इस अदरवाइज मैं यहाँ से सीख के मैं बॉस बन गया, कोई नहीं. नोबडी. चैलेंजेस आर ऑलवेज देयर, यू हैव टू फेस इट. जब कभी जैसे बहुत कठिन समय आता है तो अपन सबसे पहले भगवान के पास जाते हैं. इट्स लाइक दैट. यू हैव टू एक्सेप्ट दैट कि मेरे को कुछ भी कठिन काम है, कुछ मेरे को सर्जरी करते करते कुछ भी आया तो मैं इमीडिएटली मेरे गुरु को फ़ोन करूँ, पूछूँ कि सर ये ऐसा हुआ है कि क्या है. दिस शुड नॉट बी ईगो. एट कोई भी आदमी को तुम्हारा मेंटर भी नहीं बोलता होगा, वो मेंटर भी किसी को मेंटर मानता है. तो ये शुड बी. आई मीन आई स्टिल अभी भी मैं कभी कभी
if I'm having a bad day ना, मैं रात को घर आते थे, I give my mentor a call. I just tell him, सर यार आज दिन अच्छा नहीं जा रहा, मेरे को बस आपका आवाज़ सुनना है. तो 10 मिनट मेरे से बात करते हैं, I come home बहुत रिफ्रेश सर. That's really बहुत अच्छा लगता है refreshing एकदम. वही ना, 2-4 मिनट बात करो, स्क्रीन टाइम अवॉइड करो, उससे अच्छा लोगों से बात करो ना, मस्त बढ़िया एकदम. आप क्या लेगेसी छोड़ के जाना चाहते हैं सर? मेरा एक लेगेसी में मैं फॉर कम्युनिटी और यू वांट फॉर द लेगेसी ऑफ डॉक्टर वसंत खड़तकर क्या रहेगी? माय लेगेसी दैट माय फॉलोअर should go for one is a rational practice. The very important that they should get. You have to have a courage to tell truth. That first thing. तुम्हारे से कुछ गलत हुआ तो वो ट्रूथ बोलना चाहिए. Don't be egoistic and always make a friendship with everybody because friends are always forever. They will come to you in good time also and bad time. Bad time. That is the most important part. Yeah. Because most of the time सर मैंने I don't know कहीं तो भी I had read this की you will not be remembered for what you did but you will always be remembered for how useful you were to other people. Yes, actually. exactly. इसीलिए दूसरे के काम में ज़्यादा हो. Definitely. But don't forget your family. That is also very important. Family first. Yeah, family Always, first. Always. Family and your health nowadays. Yes, very important. Anything else you want to talk about, sir? I think my message for community basically, you have to trust your doctor. That is very important. बहुत missing है. Sometime it happens, he made a mistake, but you have to forgive him. The thing, because कोई भी अपन ट्रस्ट से जाते हैं ना, तो उसका एक एडवांटेज 50% ऑफ द योर तुम्हारी जो बीमारी है ना वो ट्रस्ट से कम होती है. मैं डॉक्टर खलतकर के पास जाता तो मेरा वैसी बोलते लोग कि मैं दरवाजे में इंटर होता हूँ तो तुम हमारा बच्चा अच्छा हो जाता. द ट्रस्ट शुड बी लाइक दैट. और कम्युनिटी के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रस्ट से जाऊँ कि मेरे को ये डॉक्टर के पास जाना, ये डॉक्टर के पास अच्छा ही होगा. और तुम बोलने की हिम्मत रखो कि सर तुम्हारे सेकंड टाइम क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं कि अरे यार उससे अच्छा नहीं हुआ. मैं नहीं, सेकंड टाइम जाओ, उनको बताओ कि सर हमने आपका मेडिसिन दिया था, ये नहीं हुआ. ही शुड ऑल्सो नो. बट दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड फॉर अवर डॉक्टर्स कलीग आई ऑलरेडी सेड बी रैशनल, बी पॉजिटिव एंड डू द सम सोशल वर्क फॉर कम्युनिटी. वेरी इंपॉर्टेंट. मैं सर मेरे बहुत पेशेंट को ये समझाता हूँ कि हर डॉक्टर ये चाहता है कि आपको कम से कम दवा डोज में आपको मैक्सिमम इफेक्ट आए. तो इफ यू आर नॉट गेटिंग बेनिफिट, वापस आओ ना, हम डोज बढ़ा के देंगे या फिर ऐड ऑन समथिंग. एग्जैक्टली. एंड कोई डॉक्टर को जानबूझ के आपको खराब थोड़ी करना चाहता है. नहीं हुआ, अरे नहीं, वो कमर्शियल रहा तो भी नहीं करना चाहेगा, वो नहीं करेगा उसमें. क्यों? और वो उसका खुद का नाम थोड़ी खराब करना चाहता है. एंड हर डॉक्टर को पता है ऑल इट टेक्स इज वन बैड केस. यस. और आप खत्म कुछ भी नहीं कर सकते. एनीवेज, थैंक यू फॉर बीइंग हियर सर. अरे रियली बहुत बिजी स्केड्यूल से आए सर. थैंक यू सो मच. इट्स रियली माय प्राइड एंड रियली आई एम वेरी हैप्पी. आई कुड मन की बात मैं बोल सका सर. दैट्स कटिंग. थैंक यू सर.